आपको ऐसा मतलब कब लगा कि आपको अपनी हाइट इंक्रीज करानी चाहिए? एक्चुअली ये तो मैं लाइफ में फेस कर ही रहा था कि कॉन्फिडेंस कम था। हर कहीं भी जाता था, कॉलेज या फिर ऑफिस में, थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस कम लगता था। हर कहीं पार्टीज में जाना रहेगा तो वहाँ पे भी मुझे ऐसे थोड़ा सबसे हटके पीछे पीछे रहना ऐसा लगता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो उसके वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि हाइट इंक्रीज करना है। My height is very low. Maybe friends and sometimes shaming. It's that problem. I will take this surgery. Well, I did this because I started I found this about 1 or 2 years ago, and I wanted to do this because, well, you start to, some people have the hate of the person very present, and some people don't, but most of the people have this very present. So you start to connect the comments of the people, and yeah, you found that some people have this very present, and this will provide me with some advantage, I think. So that's why I did this. मतलब ये सर्जरी मैंने रीज़न इसका करवाने का ये था कि मेरे को काफ़ी टाइम से कॉम्प्लेक्स था और मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी करे थे, लाइक एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और काफ़ी मेडिसिन भी ली थी। तो जिसमें कोई मतलब ऐसा अश्योर्ड रिजल्ट नहीं होता, बट इसमें गारंटीड रिजल्ट है कि आपको 6 महीने में इतनी हाइट मिल ही जाएगी। तो इसलिए और मेरे को कॉम्प्लेक्स काफ़ी टाइम से था, तो ये मेरे को अच्छा टाइम लगा कराने का, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। आज से अप्रॉक्स 1 ईयर पहले मैंने हाइट इंक्रीज इन्फो के विषय में मुझे जानकारी मिली थी। पता चला था कि हाँ, ऐसी कोई सर्जरी होती है जिससे हाइट बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। सो आपका चैनल हाइट इंक्रीज इन्फो का आया। सो उसमें मैंने काफ़ी सारी लोगों की जर्नी देखी, स्टार्टिंग देखी, सारी चीज़ें मैंने देखी। देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये जगह बेटर होगा। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आया। आने के बाद सर से मिला, डॉक्टर हृदय सर से, आपसे मिला, और सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद मैंने ये प्रोसीजर। That is because of my personal reason. My personal goal is 5.5 centimeter, and there is also we can do limb lengthening. If there is no complication, we can go till the 7 to 8 centimeter in the one segment. But I was satisfied with the 5.5 centimeter due to personal reason. This is why I choose the 5 centimeter. Yeah, for number one thing was confidence, because I never feel confident enough in public, and any of the college fest whenever I used to go, or any other family function with gathering, there I was always a short guy among the public, and it reduces my confidence and I feel very isolated and separated. So that was the main reason, that was the trigger point actually when I felt the need of this surgery. But considering the risk involved in this surgery, I was delaying it because I didn't find any place like height increase info before. I searched for 5 to 6 places, and I outside India and within India, and I inquired about that. I researched about those places where this facility is available, and I compared all the centers, all the hospitals, and I find this to be the best. And then last year I made the decision that in 2023 I'm going to have this surgery, and I start preparing my physique as well as my mentally. I started preparing myself for this surgery. From last 2 years, I have this feeling. Before 2 years back, you were fine. Before 2 years also, I'm not fine. But yeah, from last 2 years, it was very much emotionally draining me that I am a little shortened. So, मैं decide किया, I have to get some height somehow. तो एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, 15 साल की उम्र में मैंने देखा कि मैं बढ़ नहीं रहा हूँ। जब मैं 16 साल का हो गया तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं मुझसे 2-3 इंच बड़े हो गए। 17 साल का हुआ तो मैं देखा वो 4-5 इंच बड़े हो गए। फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, बॉम्बे में जाके, अलग अलग शहर में जाके, बड़े बड़े शहरों में जाके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, पर अब आए हो बहुत लेट आए हो, क्योंकि आपके जो ग्रोथ प्लेट्स है
जुड़ चुके हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में एक प्रॉब्लम होती है कि बो लेग्स हो सकते हैं, और जो मेरे केस में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था, मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगता था, और इस वजह से मैंने तब से एक्टिव स्पोर्ट्स में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हो सका, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत भी होती थी। तो मैं तब से ही सोच रहा था, अनफॉर्चुनेटली आज से इतने साल पहले इस तरह का कोई सोल्यूशन ऑर्थोपेडिक्स में हमारे देश में तो नहीं था, और विदेशों में भी जो उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था इनफैक्ट। तो जब इंटरनेट आया सन 2000 साल में, तब मैंने वापस रिसर्च शुरू किया। तब भी मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, कुछ छोटे मोटे न्यूज़पेपर में कुछ आइटम्स मिले थे, वो भी ज़्यादातर नेगेटिव थे।